ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 4 اکتوبر کی اسپیڈ نیوز۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے جمعہ کے روز کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا کسانوں کے قرض کی معافی پر جھوٹ ایک بار پھر آشکار ہو گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاستی وزیر زراعت تمولا ناگیشور راؤ کے بیان سے چیف منسٹر کے جھوٹ کا پردہ ایک بار پھر آشکار ہو گیا کہ حکومت نے کسانوں کے قرض کی معافی اسکیم پر 100% عمل آوری کی ہے۔ راما راؤ نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر زراعت نے اپنے بیان میں کہا کہ 20 لاکھ کسانوں کا قرض معاف نہیں کیا گیا۔ وزیر زراعت کے اس بیان سے فصل قرضوں کے مکمل معافی سے متعلق چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے پھیلائے جانے والے جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ ٹالی ووڈ اداکار اکھل اکینینی نے کہا کہ تلنگانہ کی وزیر جنگلات و ماحولیات کنڈا سریکھا کو ناگر چیتنیہ اور سمانتھا علیحدگی پر کے نازیبا اور نفرت انگیز تبصروں کے لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اکھل جو ناگر چیتنیہ کے سوتیلے بھائی ہیں، انہوں نے ایکس پر جمعہ کے روز پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سماج میں ان جیسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قابل احترام شہری اور باوقار خاندان کے افراد ہیں، مگر ان افراد کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ بے عزتی محسوس کر رہے ہیں ایک سیاسی لڑائی میں جسے وہ خود غرضی سے جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے سدی پیٹ ضلع کے اپنے دورے کے دوران ایک اور بڑا تنازع کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اس خدشے کا ظاہر کیا کہ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ اپنے والد و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ کنڈا سریکھا نے اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ KCR کو کئی دنوں سے عوام میں نہیں دیکھا گیا، جس سے سیاسی حلقوں اور عوام میں یکساں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کے خلاف اپنا بیانیہ جاری کرتے ہوئے کنڈا سریکھا نے کہا کہ BRS اور BJP نے BRS MLC کویتا کو بچانے کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کویتا جیل سے ضمانت پر باہر آئی ہے۔ گجویل مارکیٹ کمیٹی گورننگ باڈی کی حلف برداری کی تقریب میں سریکھا نے کہا کہ BRS نے BJP کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا، جس سے BJP کو میدک پارلیمنٹ حلقے میں کامیابی میں مدد ملی تھی۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی کی جانب سے تعلیمی سال کے لیے پیش کردہ SSC اور انٹرمیڈیٹ کورسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس بیان میں کہا ہے کہ بددہن اور بدزبان یتی نرسنگھانند نے پیغمبر اسلام کی شان میں جو گستاخانہ کلمات کہے وہ قطعاً ناقابل برداشت اور سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں مولانا نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بدزبان شخص پر کیس چلا جائے اور اس کو اس کی صحیح جگہ یعنی جیل پہنچائے، کیونکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے۔ اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک گئے تو اس سے پورے ملک کا امن و امان خاکستر ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد آج صبح سے شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم شام 4 بجے کے قریب موسم میں تبدیلی آئی، جس کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور کئی مقامات پر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس بارش کی وجہ سے حیدرآباد میں بھاری بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کارخانہ پولیس نے جمعہ 4 اکتوبر کو ایک ہوٹل پر کیس بک کیا، جب پولیس اہلکار کھانے میں شاورما کھانے سے بیمار ہو گئے۔ یہ واقعہ 24 ستمبر کو پیش آیا۔ رپورٹ بتاتی ہیں کہ حیدرآباد کے گرل 9 ریسٹورنٹ میں شاورما کھانے کے بعد ایک انسپکٹر اور اس کا ڈرائیور بیمار ہو گئے۔ کارخانہ پولیس نے کہا یہ کھانے میں ملاوٹ کا معاملہ ہے اور ریسٹورنٹ پر BNS کی دفعہ 274 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ جمعہ کی دوپہر شہر کے مضافات میں شامیر پیٹ کے کولاتھور کی جھیل میں حادثاتی طور پر 3 بچے ڈوب گئے۔ پولیس نے شبہ کیا ہے کہ وہ جھیل میں تیرنے گئے تھے لیکن ڈوب گئے کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتے تھے۔ بچوں کی شناخت ہرشا، منیکانٹا اور منوج کے طور پر کی گئی۔ تینوں دوست شامیر پیٹ کے رہنے والے ایک ہی محلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسا کہ دسہرہ کی تعطیلات کے لیے اسکول بند تھا، وہ ہرشا کے گھر کے پاس کھیل رہے تھے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ کھیلتے ہوئے تینوں نے جھیل جانے کا فیصلہ کیا۔ پانی کے جسم پر پہنچنے کے بعد اگرچہ ان میں سے کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا، وہ پانی میں اتر گئے اور ڈوب گئے۔ شامیر پیٹ پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں ناگراجو ایک ٹپر ڈرائیور نے جمعہ کو ضلع نلگنڈے کے ترمل گری پولیس اسٹیشن میں سب انسپکٹر کے ذریعے مبینہ طور پر بے دردی سے پیٹنے کے بعد اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ٹپر آپریٹر کی شکایت کے بعد پیش آیا، جس میں ناگراجو گاڑی سے انجن چوری کرنے کے الزام لگایا گیا تھا۔ ناگراجو، جس نے انتہائی اقدام کی ویڈیو ریکارڈ کی، اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا کہ سب انسپکٹر نے ان کی درخواستوں کو سنے بغیر اس پر حملہ کیا۔ اس نے خود کو درخت کی شاخ سے لٹکانے کی کوشش کی، لیکن آخری لمحات میں ایک راہگیر نے مداخلت کر کے اسے بچا لیا۔
रियासत में एक 45 साल खातून को मुबैना तौर पर लोगों के ग्रुप ने जादू टोना के शुबे में जिंदा जला दिया। ये घिनौना वाक़या जिले मेदक में पेश आया। पुलिस ने जुमा के रोज़ ये बात बताई। जिले के रामायण पेट मंडल के कतरियाल गांव में जुमेरात की शब ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कम से कम 6 अफराद ने खातून पर हमला कर दिया और इसके घर से ही इसे जला दिया। पुलिस के सीनियर अहदेदार ने कहा कि ग्रुप ने खातून की पिटाई की और फिर इसे आग लगा दी। पुलिस टीम फौरी गाँव पहुंची और जख्मी खातून को हस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ दौरान इलाज चल बसी। इस ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया कि यह खातून हमारे अफराद ख़ानदान के खिलाफ जादू कर रही थी। ग्रुप के अफराद की खातून से बहस तकरार हुई, फिर इस ग्रुप के अफराद ने खातून पर हमला कर दिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्ज़िमीन की शिनाख्त कर ली है। वरंगल शहर के एक प्राइवेट लॉज में फार्मेसी की 22 साला तालिबा को ज़बरदस्ती शराब पिलाने के बाद इसकी इस्मतदरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने बीटेक की तालिबा समेत 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। ये वाक़या 2 हफ्ते कबल पेश आया, लेकिन ये तभी सामने आया जब मुतासिरा के वालिदैन ने पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा से रब्ता किया और शिकायत दर्ज कराई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP नंदीराम नायक के मुताबिक भोपालपल्ली जिले हेडक्वार्टर के हनुमान नगर से ताल्लुक़ रखने वाले ताती शिवराज कुमार उर्फ चीटी, पिडापल्ली जिले के गोदावरी खानी से ताल्लुक़ रखने वाले कोचरना मनीदीप और लखनीपल्ली के BITS कॉलेज के बीटेक के तालिब इल्म कोडम विवेक मुबैना तौर पर शामिल है। वरंगल के कॉलेज में BA फार्मेसी की दूसरे साल की तालिबा के साथ शहर के एक लॉज में इज्तिमाई इस्मतदरी की। ACP ने कहा कि मुल्ज़िमान के ज़ेर इस्तेमाल कार के साथ इनके पास से 3 सेलफोन जब्त किए गए। कमिश्नर की हिदायत पर मुकदमा दर्ज करके मुतासिरा को तिब्बी मायने के लिए भेज दिया गया। मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और 24 घंटों के अंदर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ता 5 अक्टूबर को PM किसान स्कीम की 18वीं किस्त के तौर पर 20,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे, जिससे मुल्क भर के 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। अदायगी बराह रास्त होगी। महाराष्ट्र के किसानों को रियासत की नमो शितकारी महासन्मान निधि योजना के तहत इजाफी भी 2,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। ऐसा लगता है कि आइंदा महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले मैदान में उतरेगी, जबकि रियासती सरबराह औरंगाबाद के साबिक़ एमपी इम्तियाज जलील मुबैना तौर पर अपोजिशन महाविकास उघाड़ी MBA के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत वाली VBA के साथ बातचीत भी नाकाम हो गई। AIMM ने 2019 के इंतखाबात में 2 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में भी AIMM तनहा चली गई, इसलिए कि वो अम्बेडकर की क़यादत वाली वंचित बहुजन उघाड़ी VBA के साथ अपने पहले के इत्तेहाद को नहीं बचा सकी। महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में इंतखाबात होने का इम्कान है। याद रहे कि AIMM ने VBA की हिमायत से 2019 में औरंगाबाद लोकसभा सीट जीती थी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमा को कहा कि आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर 2047 तक हिंदुस्तान के पास नए हिंदुस्तानी दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक की जैसी तमाम अहम ख़ुसूसियात होंगी और विकसित भारत ख़यालात, टेक्नोलॉजी और सकाफ़त के मुतहरिक तबादले का मरकज़ बनकर न सिर्फ हिंदुस्तानियों बल्कि बाकी दुनिया के लिए खुशहाली लाएगा। यहाँ 3 रोज़ा कौटिल्य इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा, अगर हम बरसग़ीर की तहज़ीबी तारीख़ को देखें तो हिंदुस्तानी दौर कोई नया वाक़या नहीं है। 1000 सालों से हिंदुस्तान ने फ़लसफ़ा, सियासत, साइंस और फ़न का एक सक़ाफ़ती दायरा बनाया है, जो फ़तेह के ज़रिए नहीं बल्कि हमारी सक़ाफ़ती अज़मत के ज़रिए सरहदों के पार फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD में लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी की मुबैना मिलावट की जांच के लिए जुमा को एक आज़ाद खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT तश्कील दी है। ये हिदायत देते हुए जस्टिस BR गवाई और VKV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि SIT में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अफसरान और मरकजी हुकूमत के इदारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का एक सीनियर अफसर को शामिल किया जाएगा। बेंच ने कहा, हमने इस केस में इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात पर गौर नहीं किया है, सिर्फ दुनिया भर के करोड़ों अक़ीदतमंदों के जज्बात को पुरसुकून करने के लिए तफ्तीश की ये हिदायत दी गई। बेंच ने केस में दायर कई दरखास्तों की समाअत करते हुए कहा, हम अदालत के सियासी मैदान जंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आइंदा हफ्ता होने का इम्कान है। इस दरमियान तमाम पार्टियां इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी है। शिवसेना उद्धव ने अपने कारकुनान में जोश भरने के लिए एक मराठी ज़बान में एक नगमा जारी किया। जुमेरात को नवरात्रि त्यौहार के पहले दिन यह नगमा रिलीज़ किया गया और इसे दुर्गा देवी को वक्फ किया गया, लेकिन इस नगमे के ज़रिए महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत को हदफ बनाया गया। इस नगमे का उन्वान मशाल थाम लो, मशाल हाथी घे को दिया गया है। आंध्र प्रदेश होटल्स एसोसिएशन के सदर आरवी स्वामी के मुताबिक 14 अक्टूबर से रियासत भर में स्विगी ऑपरेशंस के बाइकाट का ऐलान किया है। यह फैसला स्विगी की जानिब से रेस्तरान और दीगर खाने पीने की दुकानों को बर वक्त अदायगी करने में नाकामी के बाद लिया गया।
3 लाख रुपये लेकर बीवी ने शादी के 15 दिनों में ही फरार इख्तियार की। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम में पेश आया। श्री सत्यासाई जिले के हिंदूपुरम मंडल के राचापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली वीमा रेड्डी की उम्र 40 साल है, लेकिन वो अभी तक गैर शादीशुदा था। भीमावरम के एक मैरिज ब्यूरो से रब्ता किया, 3 लाख रुपया अदा करके इसने एक खातून से शादी कर ली। शादी के बाद से खातून बहाना बनाते हुए वीमा रेड्डी को दूर रखने लगी। शादी के 2 हफ्ते बाद दुल्हन ने वीमा रेड्डी को बताया कि इसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं और वो इनसे मुलाकात करेगी। दुल्हन को लेकर वीमा रेड्डी भीमावरम पहुंचा, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरे तो बीवी ने वीमा रेड्डी को यह कहकर वहीं छोड़ दिया कि इसके घर वालों को इनकी शादी के बारे में मालूमात नहीं, इसलिए वो इसके साथ घर नहीं चल सकता और वो तन्हा चली गई। वीमा रेड्डी ने 3 दिनों तक भीमावरम में अपनी बीवी की तलाश की, लेकिन इसे मायूसी और फिर वो मैरिज ब्यूरो से रुजू हुआ तो उन्होंने बताया कि सिर्फ शादी तक के जिम्मेदार हैं, आगे के नहीं, मामलात के नहीं। तब इसे पता चला कि इसे धोखा दिया गया। वीमा रेड्डी ने हिंदूपुरम रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वीमा रेड्डी ने मैरिज ब्यूरो के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिसने खातून के साथ मिलकर इसे धोखा दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक टीचर, उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चों को फायरिंग करके मार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात की शाम तकरीबन 7 बजे शूरतनगंज पुलिस स्टेशन के हदूद में घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिले अमेठी में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इजरायली फिजाई हमले में कत्ल के खिलाफ एक एहतजाजी मार्च में हिस्सा लेने पर 11 मारूफ और 40 नामालूम मुसलमानों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह एहतजाज हसन नसरुल्लाह की हलाकत पर गुस्सा और ताज़ियत के इजहार के लिए 1 अक्टूबर को मुनाकिद किया गया था। एहतजाजियों ने जो अमेठी के जायज़ इलाके में जमा हुए नसरुल्लाह की तस्वीर थामे हुए इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह से इजहार अंगागत का मुजाहरा किया और फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों पर अपनी मुखालिफत जाहिर की। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुदाखलत करते हुए 8 एहतजाजियों को हिरासत में लेकर इन्हें बादशाह इसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया। अमेठी में जायज़ पुलिस सर्कल के हदूद में मोमबत्ती मार्च का एहतमाम किया गया था। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का पाकिस्तान का दौरा तय है, जहां वो वस्त अक्टूबर में शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जुमा के रोज़ इस बात की तस्दीक की। ये दौरे में सुषमा स्वराज के इस्लामाबाद में होने वाले कॉन्फ्रेंस के बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का पहला दौरा है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास SHG का इनेकाद 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने ईरान की जानिब से इजराइल पर किए गए हमले को जायज़ करार देते हुए कहा कि हम इजराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और न ही जल्दबाजी करेंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने 5 साल बाद तेहरान में जुमा का खुतबा दिया और इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मज़ीद कहा कि हम सब का दुश्मन एक है और उसकी पॉलिसी मुसलमानों में तफर्रुक़ा डालना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसी तरह ईरान का इजराइल पर हमला जायज़ है। ख़ामनाई ने यह भी कहा कि इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर फतेहयाब नहीं हो पाएगा। इजराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में किए गए फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्किल सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत का दावा किया है। अल अरबिया न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की वज़ारत ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक वर्क्स के ज़राए ने बताया कि बेरूत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की अहाते के बाहर इजराइल ने फ़िज़ाई हमले किए। इजरायली फ़ौज ने दावा करते हुए कहा कि इस हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि राइटर्स को इस हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई और न ही किसी जानिब से फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया है। श्रीलंका के सदर नूरा कुमारा डिसनायक के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की दावत कबूल करने के बाद अपने पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे पर नई दिल्ली आ सकते हैं। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज सुबह कोलंबो पहुंचे और तवक्को है कि वो श्रीलंका की नई क़ियादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दोबारा कोलंबो में आना अच्छा लगा, आज श्रीलंका की क़ियादत के साथ अपनी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। मिस्टर जयशंकर 21 सितंबर को डिसनायक के सदारती इंतख़ाबात में कामयाबी के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले आला ओहदे पर फैज़ गैर मुल्की मौजूद हैं। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने अपने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी और सागर के नुक्ते नज़र को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर जयशंकर का दौरा बाहमी फ़ायदे के लिए अपनी तवील मुद्दती शराकत दारी को बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की निशानदही करता है।
अफ्रीकी मुल्क कांगो के एक दरिया में मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती उलट जाने के वाक़े में 78 अफराद हलाक हो गए और दर्जनों अफराद लापता हैं। एक सूबाई गवर्नर ने बताया कि जुमेरात को कांगो की झील क्यो में 278 मुसाफिरों से भरी कश्ती उलटने से कम 78 अफराद डूब गए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि एक भारी मल्टी डेक जहाज को पानी में उलटने और झील में गिरते हुए मुसाफिरों को दिखाया गया। ये वाज़ेह नहीं है कि कितने लोग अब भी लापता हैं और इलाकाई हुकाम ने मुतज़ाद हलाकतों की तादाद बताई है। जनूबी क्यो सूबे के गवर्नर ने कहा कि मरने वालों की तादाद 78 थी और कश्ती पर 278 अफराद सवार थे। गवर्नर जीन जेक पोरिसी ने मीडिया को बताया कि सही तादाद हासिल करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे क्योंकि अभी तक तमाम लाशें नहीं मिली हैं। तो ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।